Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we will solve the next reading comprehension and we are going to follow the same method that we have been following since a long time, right? Previewing, reading the questions, finding the answers. If you don't get the answers directly, even after previewing, you have to scan based on the keywords to find out your answers from the text. तो चलिए यही पूरा मेथड हम फॉलो करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए, प्रीव्यू कीजिए एंड हम आगे बढ़ते हैं इस पूरे मेथड प्रोसीजर के साथ। चलिए फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे अब। दो मेनी ऑफ अस एंगेज इन प्ले वी डू नॉट कंसिडर अवरसेल्व्स एथलीट्स। राइट, सो हम कहीं ना कहीं एथलेटिक्स के बारे में और खेलने के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? अब स्किम करते हैं क्विकली। होमोलूडेंस, playfulness, non-productive. Athletes, engage with a purpose, prizes, recognition. हाँ, अब लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्ले इनटू ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इज व्हाट लीड्स टू अचीवमेंट्स लाइक मेडल्स। राइट, सो हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कॉमन मैन को एक एथलीट से, है ना? और कैसे उनके खेलने में डिफरेंस होता है वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। Haryana, despite having just 2% of Indian population, played a key role in success of the 2010 Commonwealth Games, winning around 40% of India's gold medals. Haryana gold medals, athletes Sania Nehwal, Sushil Kumar, part of the state's tally, shared Jat background. Okay. The Jat community forms over 20% of the state's population, which is why Haryana is often referred to as Jutland. Okay, तो हरियाणा में 2% इंडियन पॉपुलेशन, डिस्पाइट हैविंग जस्ट 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इसका बहुत बड़ा योगदान था। कई सारे प्लेयर्स के नाम लिए गए हैं और इसे जटलैंड लैंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। हरियाणा हैज एक्सेल्ड इन कॉन्टैक्ट एंड कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स सच एज रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड शूटिंग। अब स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, कहाँ पर जीता है हरियाणा की वजह से। aggressive, focus on strength, ideals, higher, faster, stronger. Anthropologists, contact or combat sports, direct physical confrontation, combat weapons. These types of sports are seen as a reflection of or for preparation for warfare. Okay. तो ये किसमें सबसे ज्यादा अच्छा किया है? कॉम्बैट और कॉन्टैक्ट गेम्स में, स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट इज three main factors contribute to Haryana's success in these sports: its history, its peasant culture, and government policies. Region's volatile historical geography, history of conflict, peasant culture, physical endurance, strength, state sports policies 2006 has not created, ये sentence last है तो ये पढ़ेंगे अच्छे से। Finally, while the state sports policy since 2006 has not created new athletes from scratch, it has provided significant support to those already succeeding. Okay, last paragraph हम review करेंगे। Haryana's culture of toughness is tied to its history. Medieval period flourished, weak rulers in Delhi, repelling invaders, plundering Delhi, British colonialist martial race, rural Punjabis, Haryana army to strengthen their defense against expanding Russian Empire. Engagement, military engagement mirrors physicality required, wrestling, shooting. Additionally, the hard work of traditional agriculture, which was labor intensive, further shaped the physical endurance seen in Haryana's athletes. क्या कह रहे हैं? The hard work of traditional agriculture, which is labor intensive, फिजिकल एंड्योरेंस बढ़ा उसके कारण, और हरियाणा में एथलीट्स की संख्या इसी कारण से बढ़ी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाई डू पीपल ऑफ हरियाणा इंक्लूड साइना नेहवाल्स मेडल्स इन देयर स्टेट टैली?
even though she is from Hyderabad. तो सानिया नेहवाल और कुछ स्पोर्ट्समैन के नाम लिए गए हैं ना, देखते हैं क्या कहाँ पर है ये कीवर्ड, हमको कहाँ पर मिलता है, कहाँ बात की गई है सानिया नेहवाल की, फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स में ही की गई है ना। चलिए हाँ, पीपल फ्रॉम हरियाणा इवन क्लेम गोल्ड मेडल्स, ये हम पढ़ रहे हैं डिटेल में क्योंकि हमको यहाँ ये कीवर्ड मिल चुका है। People from Haryana even claim gold medals won by athletes like Sania Nehwal and Sushil Kumar, consider them as part of the state's tally, जबकि वो हैदराबाद की है सानिया नेहवाल। क्यों? Due to their shared Jat background, क्योंकि उनका Jat background है कहीं ना कहीं, not Jat exactly but Jat, sorry for my pronunciation, it is Jat, okay, Jat background है कहीं ना कहीं। देखते हैं आंसर्स में ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। हर फादर प्लेड फॉर हरियाणा इन क्रिकेट एंड इज वेल नोन इन द स्टेट। हर फादर प्लेड फॉर हरियाणा, क्या ये रीजन है कि सानिया नेहवाल का नाम हरियाणा के स्पोर्ट्स में टैली किया जाता है? नहीं। हर कोच whom she credits for her success is from हरियाणा? नहीं। her father worked in हरियाणा for 12 years, ये सारी तो कुछ बातें की नहीं गई है देखिए पैराग्राफ में। She shares the same caste chart, yeah, which is dominant in Haryana. जी बिल्कुल, हमने अभी देखा उसका कारण वहाँ डिटेल में पढ़ने के बाद। So D is our correct option, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is meant by the statement our playfulness is unproductive? What do you mean by that? ये कहाँ प्लेफुलनेस की कहाँ बात की गई है? याद कीजिए, बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि प्लेफुलनेस क्या है, मतलब एथलीट और नॉर्मल इसमें क्या फ़र्क है ना? दो मेनी एंगेज इन प्ले वी डू नॉट कंसिडर एथलीट अवर प्लेफुलनेस। देखिए ये सेंटेंस मिल गया अपने को। अवर प्लेफुलनेस ऑफन रिमेन्स नॉन प्रोडक्टिव, मतलब क्या है कि एथलीट्स जो है वो प्राइसेस के लिए खेलते हैं, रिकॉग्निशन के लिए खेलते हैं, लेकिन हम अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, हमारे पास कोई मोटिव नहीं होता स्पेसिफिक खेलने का, राइट। तो क्या बात की गई है यहाँ पर? व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, देखते हैं अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है। एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स रेयरली यील्ड्स एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स, नहीं, हम रिवॉर्ड के लिए खेल ही नहीं रहे ना। मोस्ट पीपल वेस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ऐसा भी कुछ नहीं बोला गया है। मोस्ट पीपल डू नॉट प्ले विद द गोल ऑफ अचीविंग मटेरियल सक्सेस, जी बिल्कुल ऐसा तो है। मोस्ट पीपल लैक द नेसेसरी स्किल्स टू बिकम एथलीट्स, नहीं, हम यही कह रहे हैं कि कोई मटेरियल सक्सेस के लिए नहीं खेलता है, बस खेलने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। दैट्स द रीजन अवर प्लेफुलनेस इज अनप्रोडक्टिव, ऐसा उस पैसेज में कहा गया है। हालांकि ऐसा असली जिंदगी में होता नहीं है, ओके। प्लेफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव योर लाइफ। अब देखिए हार्मोनल लेवल पे हमें ऑक्सीटोसिन मिलता है या पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं विच मेक्स अस हैप्पी आफ्टर प्लेइंग, सो प्लेइंग इज इम्पोर्टेंट, बट ये सब पैसेज में नहीं बोला गया है। इवन इफ यू पर्सनली नो दैट, डोंट यूज दैट पर्सनल नॉलेज while selecting the answers, otherwise you will mark incorrect answers, है ना। तो keep this in mind. Next is, which of the following is not a reason for high number of athletes from Haryana? Not a reason, कौन सा रीजन नहीं है? क्या क्या रीजन अपने को दिए गए हैं? इनिशिएटिव्स इन प्राइमरी स्कूल्स, अब हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है ये कहाँ पर हमें मिलेगा? हाँ, और क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर हाई नंबर ऑफ एथलीट्स फ्रॉम हरियाणा? देखते हैं कहाँ पर हमने बात की है इस बारे में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पैराग्राफ है ना। इस पैराग्राफ में भी यही कहा गया है कि एग्रेसिव स्पोर्ट्स में हरियाणा आगे है। दीज टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आर सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ और प्रिपरेशन फॉर वॉरफेयर, है ना। तो यहाँ पर भी हम उसकी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। 3 मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हरियाणा सक्सेस इन दीज स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, पेजेंट कल्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें तो उसकी सक्सेस का ये है, पर कौन सी चीज है जो अनसक्सेसफुल बनाती है वो अब देखते हैं। जो चीजें 3 दी गई है उसके अलावा जो चीज है वो अनसक्सेसफुल बनाती है, राइट। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। Government sponsored initiatives in primary schools, the state's historical association with the peasant community, the strong military presence and background in the region, the frequent history of aggression and conflict। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट को तो दिया गया है थोड़ा सा क्या कहते हैं क्रेडिट,
कि गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से हरियाणा में स्पोर्ट्स खेलने वालों का नंबर बढ़ा है, विच इज अ गुड थिंग। तो यहाँ तो ये तो रीजन नहीं है हरियाणा एक्सेल ना होने का। ठीक है। स्टेट्स हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद पेजेंट कम्युनिटी। अब पेजेंट कम्युनिटी है भैया, वो बहुत लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, उनको ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसके कारण ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में मदद मिलती है। ये भी साफ साफ मेंशन किया गया है हमारे पैराग्राफ में, तो ये भी कोई कारण नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस एंड बैकग्राउंड इन द रीजन। अब ये मिलिट्री प्रेजेंस की तो कहीं बात नहीं की गई है ना। द फ्रीक्वेंट हिस्ट्री ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन हरियाणा। अभी एग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट के कारण भैया लड़वैये होते जा रहे हैं, वॉरफेयर में पार्टिसिपेट किए हैं बहुत सारे, तो स्ट्रेंथ उनकी ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो ये भी कारण ना होने का नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं दिया हुआ है हमको? सी। तो सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन सी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। Why did the British colonialists refer to the ordinary peasants of Haryana as martial race? तो इनको martial race क्यों कहा गया है ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स के द्वारा? Because they were difficult to conquer? नहीं। Because they had historically been rurals? नहीं। Frontier region? नहीं। Because they had the largest army in the area? नहीं। Because they were difficult to conquer? ऐसा तो कुछ नहीं था कि वो difficult to conquer थे। Because they had historically been rulers of Delhi and surrounding regions? ऐसा भी कुछ नहीं दिया। To control the aggression in the frontier region, मतलब जो रशियन अग्रेशन था उसको कंट्रोल करने के लिए इनको मार्शल रेस का नाम दिया गया, उनको प्रोवोक किया गया कि आप पार्टिसिपेट कीजिए और देश की अपनी सुरक्षा कीजिए बाकी इन्वेडर्स से, राइट। सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हियर, और बाकी सब ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है पैराग्राफ में, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं तो एक बार मैं आपको उस कीवर्ड की मदद से दिखा भी देती हूँ। मार्शल रेस कहाँ, मार्शल रेस हम कहाँ बोल रहे हैं? कीवर्ड ढूंढिए चलिए फटाफट। हाँ, वेरी गुड, आई नो आपको भी मिल गया है। मार्शल रेस है ना, ये कीवर्ड है। पढ़ते हैं ये वाला सेंटेंस। In the late 19th century, the British colonialists recognized the martial race of rural Punjabis, including those from Haryana, and recruited them into the army to strengthen their defense against expanding Russian Empire। मतलब क्या किया है? जो फ्रंटियर्स थे ना, देश की बॉर्डर्स थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको मार्शल रेस का नाम दिया गया और इनको मौका दिया गया कि वो लड़ सके देश के लिए, राइट। इसीलिए हमने ये वाला आंसर चुना है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, फोर्थ के लिए। नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? फॉल्स। हरियाणा सराउंड्स दिल्ली ऑन थ्री साइड्स। हरियाणा prospered during periods of weak rule in Delhi. The state sports policy has failed to create new achievers. Shooting is a team sport as all athletes play at the same time. Which of the following statements is false according to the passage? अब हरियाणा जो है दिल्ली के, मतलब दिल्ली में रूरल्स आते थे और हरियाणा पास में ही था, ये बात तो की गई है, तो ये तो ठीक है। मतलब सॉरी, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि फॉल्स नहीं है ना स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी का देखेंगे। हरियाणा प्रॉस्पर ड्यूरिंग वीक पीरियड्स, वीक रूल इन दिल्ली, बिल्कुल। जब दिल्ली पर बैठकर कोई राज नहीं कर रहा था तब तब हरियाणा, या राज कर भी रहा था तो वीक रूलर्स थे, ज्यादा वो नहीं होता था, दिक्कत नहीं होती थी, तो हरियाणा सेफ था, तभी प्रॉस्पर किया है। द स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी हैज फेल्ड टू क्रिएट न्यू अचीवर्स, ऐसा भी कहीं नहीं कहा गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट को तो क्रेडिट दे रहे हैं ना इस पैसेज में कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से अच्छा हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हेल्प मिल रहा है, राइट। शूटिंग इज अ टीम स्पोर्ट एज ऑल एथलीट्स प्ले एट द सेम। ये शूटिंग के बारे में तो कहीं बात ही नहीं की गई है कि ये टीम स्पोर्ट है या सिंगल स्पोर्ट है या क्या है, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली यही है हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी सब तो दिए गए हैं पैसेज में और बोला गया है कि ऐसा होता है, तो क्या चीज नहीं होती इन दैट केस? ये डी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है।
Which of the following is true regarding Haryana's sports policy? It is highly credited for discovering and nurturing new athletes. हम न्यू एथलीट्स, ये न्यू एथलीट्स कीवर्ड है। हम द पॉलिसी डज नॉट प्रोड्यूस न्यू एथलीट्स बट सपोर्ट्स दोज ऑलरेडी सक्सेसफुल। अब न्यू एथलीट्स की कहाँ बात की गई है एक बार देखते हैं, सो दैट हम फाइनल नतीजे पे पहुंच सके। यहाँ पर कहीं है क्या न्यू एथलीट्स की बात की गई है क्या, देखते हैं। यहाँ तो सारा हिस्ट्री की बात की गई है ना। हम्म, नहीं, लास्ट पैराग्राफ में तो हिस्ट्री की बात की गई है, स्पोर्ट्स की, हरियाणा की, तो ये नहीं। इट्स हिस्ट्री, पेजेंट कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज नॉट क्रिएटेड। देखिए पॉलिसी ये वाला वर्ड भी आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये भी कीवर्ड है ही हमारा उस क्वेश्चन के लिए। कौन सा कीवर्ड था, कीवर्ड ध्यान रखिएगा। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हरियाणा स्पोर्ट्स पॉलिसी। जो स्पोर्ट्स पॉलिसी ये वर्ड वहां पर दिखा हमको, तो वो वाला पार्ट हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, है ना। तो पढ़ते हैं इसे। फाइनली while the state's policy since 2006 has not created new athletes, not created new athletes from scratch, it has provided significant support to those already succeeding। मतलब ऑलरेडी जो सक्सीड कर रहे हैं उनको उन्होंने सिग्निफिकेंट सपोर्ट दिया है, लेकिन ज्यादा एथलीट्स बने उसके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो उन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज हाईली क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग एंड नर्चरिंग न्यू एथलीट्स, बिल्कुल भी नहीं, है ना। बी क्या है? द पॉलिसी डज नॉट प्रोड्यूस बट सपोर्ट्स दोज ऑलरेडी सक्सेसफुल। तीसरा है नाइदर ए नॉर बी, ऐसी बात नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम कह रहे हैं वहां पैसेज में कि ऑलरेडी जो सक्सीड कर रहे हैं उनको तो मदद मिल जाती है, उनके लिए तो हरियाणा गवर्नमेंट काफी कुछ करता है, लेकिन नए एथलीट्स बने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड हम नेक्स्ट वीडियोस में भी और कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।